I scored 97.2% in my class 12th boards without 11th, and you can too. Organic chemistry is my strongest subject. It is my favorite subject and my strongest subject. आपको DNF ब्लॉक की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए. स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था and I literally did not understand what the hell is going on in my coaching classes. ये नोट्स भी बहुत गंदे बने थे पहले एक दो चैप्टर्स के, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता क्लास में, तो मैं नोट्स किस चीज के बनाऊं. माय गॉड, इतनी गंदी बायो है 11th की. एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, व्हाट द हेल गाइस, इस सब का हम करेंगे क्या एमबीबीएस में? दैट इज हाउ यू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पर्सन. उसको इस बच्चे पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने तो अच्छा ही लिखा होगा, तो वो ज्यादा मेहनत से चेक भी नहीं करेगा. Hello my beautiful people and welcome back to my channel. तो आज I'm gonna tell you guys how exactly did I score 97.2% in my class 12 boards and how can you. I'm gonna tell you guys all my study tips, my subject wise strategy, everything that you guys need to know in order to top the board exams as well. So let's get on with it. So guys, in 10th na I scored 98% and during that I was selected for an exchange program to Japan. So during my 11th I was in Japan. So because of that जो एक transition phase होता है from 10th to 11th where you get to realize that the way you have to study has to entirely change. I mean जिस तरीके से हम 10th में पढ़ रहे थे that does not apply to 11th because the पढ़ाई is entirely different. I mean 10th में जिस चीज़ को हम physics कहते थे that is not physics at all. That was just ratification. When you come to 11th you start to realize that पढ़ने का तरीका ही बदलना पड़ेगा हमें बिकॉज पढ़ाई ही डिफरेंट है. वॉट इज फिजिक्स, यू स्टार्ट टू रियलाइज वॉट इज एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. एंड जब मैं जापान में थी आई डिड नॉट फोकस ऑन 11th एट ऑल एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा ये ट्रांजिशन फेज कभी हुआ ही नहीं. आई वॉज इन सच अ शॉक व्हेन आई केम बैक टू इंडिया बिकॉज मेरे को 12th समझ ही नहीं आ रही थी. एंड आई रियलाइज कि आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस बिकॉज मैंने जब मई में कोचिंग ज्वाइन करी एंड उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया विच वॉज यू नो द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ 12th. I was not able to understand a single bit of it. I used to, feel so sleepy during my classes, during my coaching classes, because कुछ समझ ही नहीं आता था टीचर क्या लिख रहा है बोर्ड पे, वो साइन क्या है एप्सिलॉन नॉट का, मेरे को समझ नहीं आता था. I used to ask people around me, what is this, what is that, इसका मतलब समझाओ, what is that. I did not understand even a single bit of it. And that's, so many people on the internet will tell you guys कि 11th बर्बाद हो गई and still you can score well in 12th and top the board exam and you guys must think that this is all, silly talk, but this is the reality because I scored 97.2% in my class 12th boards without 11th and you can too. चाहे आपकी 11th बर्बाद गई हो ना, please take me as inspiration and understand कि 11th उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी आपको लगती है. I mean I do understand कि अगर आपने 11th अच्छे से कर ली then your 12th will be heaven for you guys because 11th is actually the stepping stone. अगर आपने 11th कर ली then 12th will be आपके बाएं हाथ का खेल. But even if आपने 11th नहीं करी, 12th is a hell of a lot easier than 11th and you will get a hang of it if you keep going. तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं. In my coaching I had joined Akash and in my coaching they started with physical chemistry. I mean starting say from solutions then blah blah blah, solid state था पहले then that was cut whatever. So they started from physical chemistry and in my school we started from organic chemistry. If you see it from my view, 10th में जो हम पढ़ते थे organic chemistry उससे 12th is a big jump. And if somebody is trying to do 12th organic chemistry without some basic concepts of chemistry and hydrocarbons, it will be very difficult for them. But I had to do that. पहले एक दो महीने I did not understand even a single bit of it and I had to juggle between physical chemistry and organic chemistry and I did not I was not able to get a hang of it. But then I realized that I have to do this. I focused a lot on organic chemistry and उस वजह से right now organic chemistry is my strongest subject. It is my favorite subject and my strongest subject. And how I did that is that I started with one shots. एंड उससे मैंने सारी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बार में चारों चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर कुरा के खत्म करे एंड मैंने उसके नोट्स बना लिए एंड मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए. दैट वाज द फर्स्ट राउंड. तो फर्स्ट राउंड में मैंने क्या किया, आई did the one shots. I did all the 4 chapters from one shot in 4 days. Then I started with the NCERT. मैंने चारों चैप्टर की NCERT बहुत अच्छे से रीड करी and I understood everything from the NCERT that I could. I highlighted the important points and then after this was done, I started with the NCERT back exercises. So once I got a hang of organic chemistry ना, I went ahead and made short notes of all the 4 chapters of organic chemistry and मैंने सारे जितने भी important reactions हैं वो सारे इन short notes में लिख लिए. एक पेज पे मेरे मतलब आगे पीछे 1 page में 1 chapter and that's how I made short notes. And what I did was जैसे जैसे मेरे आकाश के एग्जाम्स होते थे, मेरे स्कूल के एग्जाम्स होते थे, कोई यूनिट टेस्ट हो रहा है, कोई हाफ ईयरलीज हैं, प्री बोर्ड्स हैं, every kind of exam I used to study the NCERT ones and I used to keep adding things to these notes.
तो एट द एंड ऑफ इट ना आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है एनसीईआरटी की जो इन नोट्स में नहीं है. दैट्स हाउ डिटेल्ड दीज नोट्स आर. I have added every single thing that could be asked in the paper into these notes, and by the end of it ना जो भी NCERT questions मेरे को important लगते थे, कोई conversions जिसमें मैंने गलती करी, कोई ऐसी conversions जो मेरे को tricky लगी and अलग लगी जो मैंने NCERT में नहीं पढ़ी या मेरी notes में नहीं पढ़ी, that also I used to add into these. तो इसमें I have the all four chapters and some extra notes कि what all else there was in the NCERT or in the back exercises or anything. So because of it, by the end of it, I literally did not need to read the NCERT even a single time because I had these notes. So these notes were very helpful, and my advice to you guys would be definitely go ahead and make such short notes because you know every day whenever you are free you can revise them. It's not like I revise them every day, but whenever I got the chance I use these notes. They are a great help, and I will definitely, if I can, I will put a PDF of these in the bio and you can definitely check that out. अच्छा guys, तो physical chemistry भी you have to do exactly like physics, but the only difference is कि physical chemistry में NCERT is important because कुछ theoretical concepts होते हैं जो आपको NCERT से ही समझ आएंगे. I did physical chemistry through my notes जो मैंने कोचिंग में बनाए थे. I did modules भी. Starting में I tried to do modules, but by the end of the syllabus I did not do modules. I focused mainly on NCERT. Starting के 3-4 chapters के लिए I did the module and that was a big help. मेरी एडवाइस होगी मॉड्यूल कर लो इस साल, बिकॉज इस साल नीट का पेपर बहुत मुश्किल आया था. चाहे वो नीट के आप एस्पायरेंट हो चाहे आप जेई के हो, पेपर्स हैव स्टार्टेड कमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो मॉड्यूल भी कर लो साथ साथ. आई डिड नॉट डू मॉड्यूल बट यू आई शुड. एंड द मेन डिफरेंसेज बिटवीन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो पक्का ही पक्का करने हैं इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, एंड बीच की थ्योरी भी पढ़नी है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. कमिंग टू व्हाट इज लेफ्ट, yes, DNF block and जो दूसरा coordination compounds वाला chapter है. Okay, NCERT, the only god for you during your 12th class is NCERT. NCERT बहुत अच्छे से करो guys. DNF में भी and coordination compounds में भी अपनी coaching के notes जरूर बनाओ because they will be helpful to you guys. ताकि जो tables हैं different how to write the electronic configurations, आपको DNF block की सारी electronic configuration लिखनी आनी चाहिए. I used to have a hack for it. I'm going to share that hack for you in my upcoming videos. And उसमें मैं क्या करती थी कि मैं पूरी एक लाइन में सारे एलिमेंट्स लिख लेती थी एंड एक लाइन में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती थी. एंड आई यूज्ड टू हैव एक्रोनिम्स और व्हाटएवर फॉर द एक्सेप्शंस लाइक से गुड लक and whatever different acronyms that you can learn, and electronic configurations are a must for NEET. तो फिजिक्स में ना लाइक आई सेड बिफोर, स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड आई लिटरली डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन माय कोचिंग क्लासेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे नोट्स भी बहुत गंदे बने थे पहले 1-2 चैप्टर्स के, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता क्लास में, तो मैं नोट्स किस चीज़ के बनाऊँ. देन आई वेंट अहेड, घर पे बैठ के मैंने वन शॉट देखा. वन शॉट देख के फिर मैंने एनसीईआरटी करी. एनसीईआरटी करके मतलब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस करी. एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद देन आई वेंट अहेड एंड मेड माय नोट्स अगेन. मैंने कोचिंग के लोगों से नोट्स बोरो करे, उनके मैंने फिर से नोट्स बनाए एंड आई वेंट थ्रू द नोट्स. तो ऐसे करके फाइनली मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े समझ आने लगे. सो आई थिंक बाय द हाफ ईयरलीज आई गॉट अ हैंग ऑफ इट ऑल एंड मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब कुछ समझ आने लगा था. एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी बिकेम माई फेवरेट चैप्टर बिकॉज दैट वॉज द वन चैप्टर विच हैड नो रिलेशन टू 11th एंड आई अंडरस्टूड इट वेल. तो ऐसे करके मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर चीज में आई गॉट अ हैंग ऑफ इट बाय हाफ ईयरलीज. हाफ ईयरलीज में आई थिंक आई स्कोर्ड 89 विच इज लो फॉर मी ऑफ कोर्स, बट स्कूल में सबको पता है चेकिंग कैसी होती है एंड दे डिड अ वेरी टफ चेकिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज स्टिल okay with my marks. I was like ये actual exam थोड़ी है, it's perfectly fine, हम boards में पढ़ेंगे. तो in bio again 12th की bio is a lot more easier than 11th and all the chapters are comprehensible. I mean it is a little bit more difficult than 10th but वो 11th जितना level नहीं है 12th की bio का. तो 11th जब मैंने नीट की पढ़नी स्टार्ट करी ना, my god इतनी गंदी bio है 11th की. एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, व्हाट द हेल गाइज, इस सब का हम करेंगे क्या एमबीबीएस में? आई मीन आई डू नॉट नो इन्होंने इतना वास्ट क्यों रखा है 11th की बायो को. ऑल द एग्जाम्पल्स आई कुड नॉट रिमेंबर. जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, वो तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट इट्स इंटरेस्टिंग. जो ये सब स्टार्टिंग के वेले चैप्टर्स हैं, ये क्या है? आई हैव ऑलवेज बीन द चाइल्ड जो वन शॉट्स नहीं देखती है. मेरे को यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती थी 10th तक. आई यूज टू फोकस ऑन रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ एंड लर्न इट फ्रॉम देयर. तो इस वजह से मैंने वन शॉट्स नहीं देखे थे 12वीं के टाइम पे बायो के, एंड दैट वाज आई गेस अ मिस्टेक ऑफ माइंड, क्योंकि 11th की बायो के लिए वन शॉट्स आर रिक्वायर्ड, कोचिंग क्लासेस आर रिक्वायर्ड 11th की बायो के लिए. 11th की बायो इज प्रीटी डिफिकल्ट, बट एट द एंड ऑफ इट एक बारी वन शॉट देखने के बाद, एक बारी कोचिंग में पढ़ने के बाद you do not have to, you should not see videos again and again. Then you should focus on reading and learning the NCERT. तो
चलो 12th की बायो तो मेरी अच्छी हो गई. लेट मी टेल यू माई मार्क्स तीनों के. केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड 98, फिजिक्स में आई स्कोर्ड 95 एंड बायो में अगेन आई स्कोर्ड 95. मैंने री इवैल्यूएशन के लिए डाला था, पहले मेरे 93 आए थे बायो में, देन आई पुट इट फॉर री इवैल्यूएशन, मेरे 95 हो गए. आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड गाइज, बट अब क्या ही कर सकते हैं, देयर इज नथिंग वी कैन डू. एंड दैट असाइड, अब बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश पीसीएम पीसीबी जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सबको इंग्लिश करना है. इंग्लिश इज यूनिवर्सल एंड इंग्लिश इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट. इंग्लिश में सबने 100 ही लाने हैं. आई स्कोर्ड 99 बिकॉज I will tell you guys why I scored 99 and where did I lose that 1 mark. But that aside, English में what I did is, English आपको bio की तरह पढ़नी है. English में you have to read the book very very thoroughly and what I like to do is I like to learn the book. मैं chapter को learn कर लेती हूँ. तो जो questions आते हैं I use the exact same language from the book in the answer. तो because of that जो invigilator है उसको invigilator कहते हैं या checker कहते हैं, जो भी कह लो, sorry not invigilator, जो check करेगा मेरी book उसको अच्छा लगेगा देख के, because exactly answer की का answer होगा उसमें, because I pick up the exact same line from the NCERT book into my answer. I love doing that. That is how you gain the trust of the person checking your answer sheet. अगर आपके पहले 4-5 आंसर्स बहुत अच्छे, well explained, well structured होंगे, तो that is how you gain the trust of the person. उसको इस बच्चे पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने तो अच्छा ही लिखा होगा, तो वो ज्यादा मेहनत से चेक भी नहीं करेगा. एंड माई एडवाइस टू यू गाइज इज, डू नॉट वॉच अ लॉट ऑफ वन शॉट्स. इंग्लिश के लिए भाई वन शॉट्स मत देखो, ऐसी बदतमीजी मत करो. इंग्लिश की बुक पढ़ो, इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ो, उसके पीछे के एक्सरसाइज करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट्स इट. मैंने कोई पूरे साल PYQ नहीं करे किसी भी सब्जेक्ट के, मैंने कोई सैम्पल पेपर्स नहीं लगाए, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस बुक पढ़ी है, NCERT अच्छे से पढ़ी है मैंने. दैट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर. व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, अब ग्रामर तो मैं कॉमन सेंस से करती थी अपनी, मेरे पास कोई बुक नहीं थी, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, मैं कॉमन सेंस से रीडिंग पैसेज, सिनोनिम्स वगैरह सब कुछ करके आती थी. इफ यू गाइज हैव अ प्रॉब्लम विद ग्रामर, गो हेड एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज ये आप सर्च कर लो. यूट्यूब पे ही आजकल सब कुछ होता है, यूट्यूब पे नहीं तो गूगल पे ही होता है. डू नॉट गो हेड एंड बाय बुक्स अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली बैड एट इंग्लिश एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट इफ यू आर okay with speaking English and using English in every day, then you will be able to do grammar with your common sense only. But when it comes to writing, अब writing वाला जो passage है, writing passage is very important. जो section B होता है English के पेपर में, it is very important. That is your high scoring area because उसमें आप अपनी कहानी लिख के आ सकते हो. The thing is, अपनी कहानी कभी नहीं लिखी जाती. सब बोलते हैं कि राइटिंग तो जाके पेपर में मैं लिखाऊंगा, सोचूंगा, घुमा दूंगा, ऐसे करके लिखाऊंगा, बट दैट इज द बैडेस्ट स्ट्रैटेजी. ठीक है, दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ गिविंग द एग्जाम. राइटिंग पैसेज में आपको क्या करना है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जब मेरे हाफ ईयरलीज होने थे ना, यूनिट टेस्ट वगैरह मैंने अच्छे से नहीं दिए थे, बट जब मेरे हाफ ईयरलीज होने थे उनके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था. उसमें मैंने, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, आप हर एक की एक सैम्पल लिख के याद कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल राइटिंग है, एक सैड आर्टिकल अबाउट अ एक्सीडेंट, अबाउट अ प्लेन क्रैश, अबाउट एनीथिंग विच यू इज which is a sad incident. एक sad incident और एक happy incident like a celebration, like a farewell, like a carnival, like a donation, anything. एक happy incident, एक sad incident, दोनों के एक सैंपल लिख के उसको रट्टा मार जाओ. ऐसे ही लेटर राइटिंग का, लेटर टू द डायरेक्टर, एक सैंपल लिख लो, रट्टा मार जाओ. नोटिस राइटिंग, नोटिस फॉर अ कॉम्पिटिशन, नोटिस फॉर एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, उसको रट्टा मार जाओ. एक आपने ऐसा सैंपल हर एक चीज का रट्टा मार लिया ना, तो यू विल नॉट रियलाइज कि आपकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफकोर्स हमेशा और का ऑप्शन होता है. In writing passage, there is always an option between two articles that you can write, this one or that one, और का option होता है. तो because of that you can choose the one you want to write, जो आपके सैंपल पे बेस्ड हो, आप उसको चूज कर लो एंड आपकी एफिशिएंसी एंड स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना पेपर में. लेट मी टेल यू अबाउट माई पेपर. तो मेरा इंग्लिश का पेपर मेरा पहला पेपर था एंड आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट एंड द थिंग इज आई डिड नॉट हैव अ वॉच फॉर दैट एग्जाम, सो आई बोरोड इट फ्रॉम समवन एंड व्हाट हैपेंड इज, अब इसको आप एक सुपरस्टिशन कह लो, आप वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, maybe I kind of believe in it because I had never had a problem with time management, but because when you borrow somebody's watch, you borrow their time or something, and because of that इतना गंदा टाइम मैनेजमेंट करा था मैंने इंग्लिश के पेपर में कि एंड का सिर्फ आधा घंटा या समथिंग बचा था एंड पूरा 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन बी, दैट इज द राइटिंग वाला पार्ट, मेरा बचा हुआ था. अब अगर मैं ऐसे सैंपल्स रट्टा मार के नहीं जाती ना, देन आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर 99. मेरे जो 99 आए हैं, मेरा 1 मार्क कटा है, दैट इज बिकॉज मैंने सब कुछ तो लिख लिया था, बट नोटिस राइटिंग में यू हैव टू मेक अ बॉक्स अराउंड द नोटिस एंड मैं वो बॉक्स नहीं बना पाई थी. आई आस्क्ड द इन्विजिलेटर, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, तो आई आस्क्ड हर, मैम जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड मेरे को एक बॉक्स बनाना है, बट शी डिड नॉट लेट मी मेक दैट बॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट 1 मार्क. तो
ऐसा मेरे साथ हुआ है, दिस कैन हैपन टू अ लॉट ऑफ यू गाइज. तो रादर देन रिलाइंग कि मैं जाके पेपर में देखूंगा कि लिखना क्या है, आ जाएगा मेरे दिमाग में, डू नॉट डू दैट. बी स्मार्ट एंड एक सैम्पल बना के रट्टा मार लो. जो चीज, जो आर्टिकल, जो नोटिस, एवरीथिंग जो मैं अपने हाफ ईयरलीज में लिख के आई थी ना, वही एग्जैक्टली सेम चीज मैं अपने बोर्ड्स में लिख के आई हूँ. बिकॉज कुछ ज्यादा डिफरेंट होता ही नहीं, या तो एक हैप्पी इंसिडेंट होगा या एक सैड इंसिडेंट होगा. व्हाट एल्स कैन दे गिव यू, राइट? तो this will be a very smart decision for you guys. So the main thing which will help you to score well in your boards or any exam that you have to give is confidence. अगर आप लोग अपने में confident रहोगे, then only you will be able to score good in the exam. NEET के exam के लिए I was a little bit scared because of course I did not do 11th अच्छे से, तो I was of course scared for that exam. But boards के लिए I was very chill about boards. I was very sure of myself and I was very very confident कि boards में मेरे marks आ जाएंगे, and वो आ गए. My advice to you guys will be, जो boards के बीच की छुट्टियां होती है ना, utilize them very very well. चाहे आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी ना, those 4 days, those 3 days will be like God sent gift to you guys, because इन्हीं दिन में आप पढ़ के एग्जाम को फोड़ सकते हो. अगर आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ा है ना, those 3 days, 4 days will be enough to align everything and will be enough for you to remember everything, because I truly believe कि I have a really short term memory. तो because of that, अगर मैं एग्जाम से वो 4 दिन पहले ना पढ़ू ना, then मेरा एग्जाम में कुछ नहीं होगा. तो utilize those 3 days, 2 days, 1 day, any time that has been given between the 2 exams, utilize them very very well. So I hope you guys like my video, and if you did and if you like my vibe, please subscribe to my channel and definitely tell me अगर आपको कोई भी problem हो रही है related to your studies. If you're in 10th, 11th, 12th, any problem that you're having, I'll definitely try my best to come up with a solution for it. And if you guys want me to make any detailed video about any of the 4 subjects, physics, chemistry, bio, English, my experience in Japan, if you should take Japanese or any other second language like Spanish, German for your class 12th boards, and physical education, any extra subject, anything that you guys want to know, tell me in the comment section down below. And I hope you guys have a wonderful, wonderful, beautiful year ahead. I'm sending you lots of love and definitely top the board exam. Lots of love, guys.